We are starting biomolecules now. Okay, in this chapter we will read about the biomolecules. Okay, so अभी हम लोग old definition देखेंगे carbohydrates. Okay, so carbohydrates. It's old definition. Old definition. So carbohydrates, according to the old definition, carbohydrates are the hydrates of the carbon. Okay, so क्या बोला? Hydrates of the carbon. Okay, so hydrates of carbon having general formula CxH2OY. ओके, मीन्स ये क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है. ओके, और एक्सेप्शन में क्या बताया उन्होंने? एक्सेप्शन में बताया, एक्सेप्शन लाइक फॉर्मल्डिहाइड, formaldehyde and acetic acid. Give same formula but are not carbohydrates. जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड HCOH ना, इसको अरेंज कीजिए तो ये C1H2O1 ना, so same as that of the CxH2OY. okay, अगर एसिटिक एसिड देखेंगे CH3COOH ना, देन इसमें क्या होगा? C2H2O whole twice. Okay, means formaldehyde or acetic acid can be also arranged in the form of CxH2Y, but ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. ओके, सो मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ एक्सेप्शन आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, मतलब इसको डिस्कार्ड कर दिया और फिर न्यू डेफिनेशन मिला. ओके, सो नाउ वी सी द न्यू डेफिनेशन. सो न्यू डेफिनेशन. सो न्यू डेफिनेशन में इन्होंने क्या बताया? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन. ध्यान देंगे इस पे. विथ मिनिमम 1 chiral center. मीन्स इसमें एटलीस्ट 1 chiral center होने चाहिए. ओके, मिनिमम 1 chiral center होने चाहिए. एटलीस्ट 1 chiral center. ओके, so this is important. And this is what? Polyhydroxy aldehyde or ketone. Okay, so next we will classify. Now just I am classifying carbohydrates. So classification of carbohydrates, and it is what? It is based on, it is classification based on different bases. Okay, so it is based on hydrolysis. ओके, ये हाइड्रोलिसिस पे बेस्ड है. तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करता हूँ देन मैं इसको डिफरेंट वे में कर सकता हूँ, लाइक मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड,
and polysaccharide. ओके, सो बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस हमने तीन में क्लासिफाई कर दिया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड polysaccharides. Okay, so first we are discussing about the monosaccharides. So first is monosaccharides. So monosaccharide, na? So just I'm defining the carbohydrates which cannot be further hydrolyzed. ना इसको मतलब और भी हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, ओके, इनटू simpler carbohydrates. Means what? It is basic unit. ये basic unit है, means it is the smallest unit. मतलब इसको और भी हम simple carbohydrates में break नहीं कर सकते. That is called monosaccharides. Okay. So हम again classifying monosaccharides. So next is classification of monosaccharides. And this is only the important, okay, और कुछ डायसैकेराइड इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट पहले मोनोसैकेराइड हम लोग देख रहे हैं. सो मोनोसैकेराइड, so it is based on according to the number of carbon atom, according to the number of C atom, and second classification based on the presence of functional group, मतलब functional group के presence पे, according to functional group. Okay, so based on the number of carbon atom means कितने कार्बन है इसमें ना, तो if suppose the minimum number will be 3, okay ना, 3 से स्टार्ट होगा. वाई? बिकॉज हमने डिफाइन क्या किया था, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन विद मिनिमम 1 कायरल सेंटर. इट मींस मिनिमम 3 होने चाहिए, 3 कार्बन रहेगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. तो 3 से स्टार्ट होना है. So 3 carbon, it means 3 means tri, है ना, and this is what? Saccharide ना. Okay, so triose. So triose. Okay, अगर 4 कार्बन रहेगा then it is tetrose. अगर 5 कार्बन रहेगा तो पेंटोस. ओके, अगर 6 रहेगा तो क्या बोल देंगे? हेक्सोस. ओके, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप ना, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कैन बी देयर, 2 हो सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन. अगर अल्डिहाइड है ना तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? एल्डो. ओके, और अगर कीटोन है, ओके, तो इसमें मुझे क्या यूज करना है? कीटो यूज करना है. ओके, ठीक है. एग्जांपल देखते हैं, लाइक CHO, ये गिवन है मेरे पास, CH2OH, सपोज OH 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 HHH, कॉमन नेमिंग करना है मुझे. Okay, so first count the number of carbon atom. पहले number of carbon atom count कर लीजिए. So 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 कार्बन एटम है. ओके, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पे अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड. ओके, सो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप.
सो अल्डिहाइड, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, हम एल्डो यूज करने वाले हैं, ओके, प्रीफिक्स एल्डो यूज करेंगे। सो 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, सो अल्डो, अल्डो इट बिकम पेंटोज, ओके। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्डो पेंटोज। क्लियर है? ओके, एक पॉइंट लिख लेते हैं। All naturally occurring carbohydrates, all naturally occurring carbohydrates acquire deorientation। ये क्या होगा, डीओरिएंटेशन ऑक्युपाई करना है, ओके, डीओरिएंटेशन। अब ये डीओरिएंटेशन क्या है, हमने बात किया था आइसोमरिज्म में, ये डीओरिएंटेशन, ओके, डी और एल की बात किया था हमने। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ना, लाइक CHO OH H CH2OH, ओके। सो मैंने बताया था कि यहाँ पे OH जब राइट साइड में रहेगा, मतलब कायरल सेंटर, लास्ट कायरल सेंटर, अगर नंबरिंग करेंगे तो देखिए तो 1 2 3, ओके ना, मीन्स व्हाट, मीन्स जो लास्ट कायरल सेंटर पे है, अगर OH राइट साइड रहेगा देन इट इज डी कॉन्फ़िगरेशन, ओके। और एल के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी का मिरर इमेज ले लेते हैं, ओके। तो एक ही कायरल सेंटर है तो ये लास्ट ही रहेगा, मीन्स ये OH राइट साइड में है, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, डी। तो ये डी है ना, और ये बेसिक यूनिट होता है, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड। सो ये हो गया डी ग्लिसरल्डिहाइड। सो ये ध्यान में रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरल्डिहाइड यहीं से हम लोग सब कुछ फॉर्म करेंगे, सब कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये ट्राइओज हो गया ना, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, यहीं से हम फॉर्म करेंगे, okay? तो ग्लिसरल्डिहाइड ध्यान रखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेंगे, डी एंड एल कैपिटल है, ध्यान रखेंगे, स्मॉल नहीं, डी एंड एल आर mirror image of each other, ओके। सो ईच अदर का मिरर इमेज होता है। सो अगर जैसे मुझे ड्रॉ करना है, ओके, CHO OH H CH2OH ना, ये हमारा डी ग्लिसरल्डिहाइड है। मुझे एल ग्लिसरल्डिहाइड, तो इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लेंगे, मिरर इमेज। सो CHO OH H ना, इस साइड है ना, तो OH इस साइड आ जाएगा H, और ये CH2OH, तो ये क्या हो गया, एल ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, ओके। सो डी एंड एल क्या होता है आपस में, मिरर इमेज होते हैं, ओके, ये ध्यान रखेंगे। सो वी आर डन विद द ट्राइओज, ओके। सो अब हम टेट्रोज पे आएंगे, ओके। सो टेट्रोज, सो अल्डो टेट्रोज, ओके। सो इस केस में CHO ना, CH OH CHOH, और क्या हो जाएगा, CH2OH। अगर इसमें कायरल सेंटर देखें, सो कायरल सेंटर कितना हो जाएगा, कायरल सेंटर 2 कायरल सेंटर, ओके। और ये क्या है, नॉन सिमेट्रिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 पावर n, मतलब 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ओके। सो 4 मीन्स 2 विल बी हैविंग डी कॉन्फ़िगरेशन, 2 के पास डी रहेगा और 2 के पास
एल कन्फिग्रेशन रहेगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे केवल डी ड्रॉ करेंगे, बिकॉज एल ड्रॉ करना है तो मिरर इमेज ले लेंगे तो वो हो जाएगा ना। ओके, वी विल ड्रॉ डी ओनली। सो डी, सी एच ओ, ओके, ये हमारा ग्लिसरल्डिहाइड था ना। अगर हम बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड ये क्या था, ओ एच एच। ओके, सो एक्चुअल में ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, बेसिक यूनिट है, तो बेसिक यूनिट नहीं लेंगे। तो इसमें क्या है, हमने ग्लिसरल्डिहाइड ड्रॉ करना है, एक कार्बन इंक्रीज किया, मतलब एक सी एच ओ एच इंक्रीज किया है ना, तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना। फर्स्ट टाइम में ओ एच राइट साइड, एच लेफ्ट साइड, अगले में क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट सी एच ओ एच, ये तो ग्लिसरल्डिहाइड है ना। हमने क्या किया, एक इंक्रीज कर दिया है, सो पहले राइट किया एंड अब लेफ्ट कर देंगे, सो एच ओ एच। ओके, सो फर्स्ट वाले का नाम क्या हो गया, इरिथ्रोस। ओके, एंड ये डी ना, सेकेंड पे देखिए तो ओ एच किधर है, राइट साइड है ना, राइट साइड, तो डी इरिथ्रोस और ये डी थ्रियोस, ये ध्यान रखेंगे। ओके, और एल ड्रॉ करना है तो मिरर में ड्रॉ कर देंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ये हमारा टेट्रोस था। नेक्स्ट, एल्डो पेंटोस। ओके, अब एल्डो पेंटोस की बात करेंगे। सो एल्डो पेंटोस देखिए तो सी एच ओ ना, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच एंड सी एच टू ओ एच, ये हो जाएगा। ओके, अगर काइरल सेंटर देखें तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3, सो 3, सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 मीन्स 8, एंड एज वी नो 8 ना मीन्स 4 रहेंगे, 4 डी रहेंगे और 4 एल रहेगा। ओके, सो वी विल ड्रॉ ओनली डी, केवल डी ड्रॉ करना है, बिकॉज एल तो मिरर इमेज, सो हम लोग केवल डी ड्रॉ करेंगे। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ डी। सो सी एच ओ, मैंने आपको बताया था ना कि जस्ट जो प्रीवियस रहेगा उसको ले लेंगे एज ए स्केलेटन और एक इंक्रीज कर देंगे सी एच ओ एच, सो सी एच टू ओ एच, ओके, ओ एच ओ एच एच एच। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि इन जस्ट पहले वाले ले लीजिए, है ना, जैसे एरिथ्रोज, एरिथ्रोज से 2 बनना है और थ्रियोज से 2 बनना है, तो एरिथ्रोज में एक फर्स्ट टाइम में ओ एच राइट साइड, है ना, और फिर ओ एच लेफ्ट साइड, सी एच ओ सी एच टू ओ एच ओ एच ओ एच एच एच, ये तो एरिथ्रोज हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट में राइट किया था, अभी लेफ्ट कर देंगे। ओके, जो थ्रियोज से 2 हो गए, अब एरिथ्रोज, एरिथ्रोज से 2 हो गए, थ्रियोज से करेंगे। सी एच ओ, थ्रियोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, सी एच टू ओ एच, ये ओ एच एच ओ एच, ये थ्रियोज हो गया, और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ना, फर्स्ट में राइट साइड और अगले में लेफ्ट कर देंगे। अगेन सी एच टू ओ एच 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 ओ एच, दिस इज थ्रियोज, है ना। हमने राइट कर दिया था इसमें, तो लेफ्ट कर लेंगे इसमें, ओ एच एच। ओके, सो इसका नेमिंग देख लेते हैं। ये हमारा डी राइबोज है ना, ये डी अर्बिनोज है, नेम इंपॉर्टेंट है, ये डी जाइलोज है,
और ये डी लाइजोज है। ओके अब ये इसको याद कैसे करेंगे ना, प्रॉब्लम क्या होता है, स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लेते हैं बट इसको बाई नेम कैसे याद रखेंगे। ओके तो यहाँ पे एक एक्रोनिम सीखते हैं, ट्रिक ना, हाउ टू रिमेंबर दीज नेम्स। ओके सो आप ऐसे कर सकते हैं ना, जस्ट लाइक राइबोस ना, ये थोड़ा नेम साइंटिस्ट टाइप का नेम ये अपीयर हो रहा है। तो राइबोस नाम का साइंटिस्ट है ना, अरब गया, अरब ना, अरब कंट्रीज, अरब गया और जाइलम खाया ना। जाइलम अपने बायो एक टर्म होता है जाइलम, ओके ना, रूट से रिलेटेड होता है ना, मतलब मूली टाइप है ना। जाइलम खाया और लक्स ना, लक्स सोप ना से हाथ धोया, मतलब उस टाइम हैंड वॉश नहीं था। तो ये ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ओके तो ये ध्यान देना है आपको ना, ना ये टर्म आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। आप और भी कोई ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, ट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, द वे यू आर लर्निंग दीज नेम्स। ओके ये इंपॉर्टेंट है, तो कैसे भी ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट कमिंग टू एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस की बात करते हैं। एल्डोहेक्सोस सो CHO CHOH 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 again CHOH and CH2OH। ओके ये रहेगा। कायरल सेंटर देखिए तो कायरल सेंटर कितने हैं, 1 2 3 4 and non-symmetrical, so n is equal to 4। okay so stereoisomer कितने हो जाएंगे, stereoisomers 2 raise 4 means ये 16 हो गया। so out of 16 8 will be having D configuration and 8 with L configuration, so we are drawing D only because as we are knowing L is a mirror image of D, so इसलिए हम लोग केवल D कर रहे हैं ना। अगर आपने D याद कर लिया तो L तो हो ही जाता है। so अब हम लोग 8D ड्रॉ करने वाले हैं। ओके सो जैसे पहले बताया कि जस्ट प्रीवियस वाला ले लेंगे। ओके जैसे हमने आल्डो पेंटोज में देखा था ना, तो आल्डो पेंटोज से हम लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ से एक CHOH ऐड करने वाले हैं। ओके सो ड्रॉ करते हैं, CHO। तो पहले राइबोज ड्रॉ कर लीजिए, CH2OH ना, OH 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 H H H ना, इसमें राइट एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से, सो OH H। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड अगेन राइबोज ड्रॉ करने वाले हैं, CH2OH OH 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 H H H, और फर्स्ट में राइट से किया था तो इसमें लेफ्ट से कर लेंगे। ओके सो राइबोज तो हो गया। देन आर्बिनोज, आर्बिनोज ड्रॉ करेंगे तो CHO CH2OH OH OH H OH H H एंड एक बार राइट में OHH और अगले में लेफ्ट में कर देंगे। सो अगेन ड्रॉ करने वाले हैं हम लोग, सो OH OH H एंड देन यहाँ H हो जाएगा, H हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। ओके सो और इसमें क्या हो जाएगा हमारा
लेफ्ट में ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट। सो हमने राइबोज अर्बिनोज कर लिया, देन जाइलोज से लेंगे। ओके, सो जाइलोज ड्रॉ कर लेते हैं। CHO, ये CH2OH, ओके, OH, H, OH, H, OH, H, right side and left side, CHO, CH2OH, then OH, H, OH, H, OH, H। जाइलोज ड्रॉ कर रहे हैं, राइट में कर दिया, लेफ्ट में कर लेंगे, OH, H। नाउ लाइजोज ड्रॉ करेंगे, है ना, बिकॉज दो वहां से फॉर्म होने, CHO, CH2OH, ओके, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, H, H, OH, OH, H ना, एक बार राइट में और एक बार लेफ्ट में, CHO, CH2OH, OH, H, H, OH, H, H, एंड इस बार लेफ्ट में कर लेंगे। ओके, अब इसका नेम लिखते हैं। ओके, सो वी आर कंसिडरिंग ओनली डी, सो डी ये एलोज हो जाएगा, एलोज। ओके, ये डी अल्ट्रोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, ओके, डी गुलोज, डी एडोज, डी ग्लैक्टोज एंड डी टैलोज। सो ये 8 हो गए हैं। ओके, सो ड्रॉ कैसे करना है, प्रीवियस वाला लेके HOH एक बार राइट एक बार लेफ्ट ऐड कर देना है। ओके, एंड देन हमारा क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट हायर लेवल का है हम उसको ऑब्टेन कर लेंगे। क्लियर? ओके, नाउ वी सी द ट्रिक। ओके, अब ये याद कैसे करेंगे, ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कैसे करना है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द ट्रिक। ओके, सो इसमें जैसे इसको याद करना है, सो ऑल अल्टर लोगों को ग्लूकोज खिलाकर मनोज ने गुलाब के डंडे से, है ना, गुलाब के डंडे से आयोडोज की गली में टली कर दी। ओके, सो इसमें देखना है क्या, इसमें इंपॉर्टेंट क्या ना, ऑल। सो ये ऑल क्या हो गया, ये ऑल की बात करें ना, सो ऑल हमारा क्या होगा, ऑल से एलोस। ओके, अल्टर ना, अल्टर जस्ट मीन्स ना रीजनल लैंग्वेज मतलब बैड पीपल्स। ओके, सो ऑल अल्टर ना, सो ये रिलेटेड है, ऑल अल्टर, ऑल मीन्स एलोस, अल्टर मीन्स एल्ट्रोज, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज तो सेल्फ आ गया ग्लूकोज, एंड देन मनोज ना, सो मैनोज आ गया इधर। ओके, गुलाब, सो गुलाब से क्या हो गया, गुलोज आ गया, ये ध्यान रखेंगे, गुलोज, और आइडोज ना, आइडोज सेल्फ है, आइडोज है ना, सो आइडोज की गली मतलब गैलेक्टोज। ओके, मीन्स टली मीन्स
टैलोस। ओके, मतलब एडोज और मनोज फ्रेंड है ना, और जैसे एडोज को कोई टीज कर रहा है ना, परेशान कर रहा है, तो मनोज ने उसको डंडे से मारा ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ यू आर मेमोराइजिंग दैट स्ट्रक्चर। ओके, कुछ और है तो आप कुछ और से भी इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, सो हमने अल्डो हेक्सोज भी कर लिया है। ओके, सो मोनोसैकेराइड्स हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो अब डिफिनेशन देख लेते हैं, लाइक ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर ओलिगोसैकेराइड्स। ओके, सो ओलिगोसैकेराइड ना मीन्स, जैसे मोनोसैकेराइड्स में क्या हो रहा था, विच कैनॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, बट इन केस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स means I can write carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharides, है ना, मतलब 2 से 10 तक ये यूनिट यील्ड कर सकते हैं ना, तो 2 to 10 monosaccharides units on hydrolysis है। ओके, जिसको हम क्या बोल देंगे, ओलिगोसैकेराइड्स बोल देंगे। नेक्स्ट इज जैसे सुक्रोज देखें ना, सुक्रोज में क्या होता है ना, सुक्रोज 2 यूनिट यील्ड करेगा। सो एग्जांपल ले लेते हैं ना यहाँ पे, एग्जांपल सुक्रोज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, जस्ट नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड्स। Polysaccharides means which yields large number. Okay, so carbohydrates which yield large number of monosaccharides unit, जो बहुत सारा unit are called, okay, so क्या बोल देंगे हम, polysaccharides। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनोमर्स और एपीमर्स की बात करेंगे। ओके, सो ओके, थैंक यू।